Hello everyone, welcome back to my English classes. Now today I am going to explain the chapter from class 6th, A Pact with the Sun, chapter 8, A Pact with the Sun. Now in this chapter, there is a description of a lady who is Saida's mother. She is not feeling well. So we will see what are the problems and what solution has been given by the doctors. Now, Sadia's mother had been ailing for a long time, means she is sick for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and whatnot. Means fever, cough, body ache means जब हम पूरे body में दर्द होता है. Painful joints जब हड्डियों के joints में दर्द होता है. And many other problems were there with her. Treated by a variety of physicians for weeks. For so many days she has been treated by various physicians. She often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. कुछ समय के लिए तो she was seen that she was recovering from the problems, but again she came back to the same state. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. Now, as she has shown to many physicians, she was so weak and colorless, means मतलब उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था. No brightness was there on her face. And she was forbidden, means she was not allowed to eat normal food. Okay? And she was given strict orders to stay in a room where the doors and windows are closed and no sunshine is there. She was not allowed to take the sunshine and fresh air because all the doors and windows were closed. That is why no fresh air was coming inside her room. So she was not able to breathe fresh air. When she became critical, means जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high. मीन्स जब हम छोटे छोटे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जब ठीक नहीं होते तो फिर हम अच्छे और बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं. तो इन द सेम वे ऑल द विलेजर्स, ऑल द रिलेटिव्स टोल्ड हर टू गो टू द बेटर डॉक्टर. आप जब बेटर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस ज़्यादा लगेगी, जो उनके मुताबिक ज़्यादा थी. लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी, दे सेड. ओके, दे सेड टू सहीदा दैट लाइफ इज़ प्रेशियस दैन मनी. तो पैसा खर्च कर दो. जैसे हम लोग की लाइफ में कोई बीमार पड़ता है या हम ही लोग बीमार पड़ता है तो हमारा पैसा खर्च होता है. तो इन द सेम वे दिस हैपेंड टू हर ऑल्सो. Sahida's mothers were poor, but he heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. ओके, अब जैसे वो गरीब थी तो हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ इधर उधर करके अरेंज करते हैं. तो शी हैज़ अरेंज्ड वाइट सेलिंग ट्रिंकेट्स, और ताकि वो डॉक्टर की फीस और मेडिसिन दे सके. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. ठीक है, डॉक्टर तो आए कुछ दिन के बाद, and he gave her medicines which were expensive also. To the question as to what she could eat, he said. अब टू द क्वेश्चन मीन्स क्योंकि पहले उनको अलाउड नहीं था नॉर्मल खाने का, और वैसे भी जब हम बीमार होते हैं तो जो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है हम वही खाते पीते. तो उन्होंने भी पूछा, एनीथिंग यू विश टू ईट. नाउ व्हाट ही सेड, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट. चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फूड, एक्सेट्रा एंड सो ऑन. In addition to all this, he added emphatically means प्रेशर डाल के बोला कि नॉर्मल खाने के अलावा उनको क्या करना है, लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन. एकदम ऑपोजिट हो गया. जो पहले वो छोटे से कमरे में रहती थी, दरवाजे खिड़की बंद रखती थी, तो उन्होंने क्या किया, टू शिफ्ट हर सेल्फ इन टू अ बिग रूम वेयर द डोर्स एंड विंडोज आर ओपन, जहाँ से वो फ्रेश एयर ले सकें. Sit in the sun every morning from 8 to 9 मीन्स सुबह 8 से 9 बजे वो धूप में बैठे. सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन. उन्होंने क्या किया कि मेडिसिन से ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, धूप में बैठ के
धूप लेना. The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. Means जहाँ उस टाइम जितने लोग वहाँ पे थे सब आपस में एक दूसरे से बात करने लगे कि जो भी डॉक्टर ने एडवाइस दी उसके बारे में. Some favored while others opposed it. कुछ लोगों ने तो फेवर किया कि हाँ ये डॉक्टर सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ ने कहा नहीं नहीं ये गलत कह रहे हैं. Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous. जिनको क्रॉनिक कफ होता है उनके लिए ये डेंजरस होता है. एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड. और ठीक है, क्योंकि एक लेडी उसमें से ग्रुप में से बोली, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ को फेस किया था, किसी को फेस करते हुए देखा था. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई जिनको क्रॉनिक कफ होता है उनको धूप में नहीं बैठना चाहिए. अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस, टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट. अब एक तरीके से डिबेट हो गया कि उनको बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, उनको पूरा अच्छी तरह खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. Though she was quiet, she decided that she will listen to the doctor. Forget the consequences, she said at last. जब सबकी ब्ला 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 सुन ली तब उन्होंने कहा चुप हो जाओ, अब मैं वही करूँगी जो डॉक्टर ने बोला है. I'll carry out these instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई फॉर एन आवर डेली. ठीक है, जैसे डॉक्टर ने कहा उसने कहा मेरे लिए ये सब आप अरेंज कर दीजिए, मुझे शिफ्ट कर दीजिए दूसरे बड़े रूम में. It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case with the following day. Means overcast means मतलब उस समय कम धूप निकली. Saida's mother was dejected. मतलब अब जब धूप नहीं निकली तो वो अंदर से थोड़ा सा घबरा सी गई, टूट सी गई. She muttered means बड़बड़ाना. Oh God of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? उन्होंने क्या कहा खुदा बाप से कि खुदा आपने ऐसा क्यों किया, क्यों सूरज को निकलने से रोक दिया. How will I ever be cured? She questioned God that अगर धूप नहीं निकलेगी तो मैं ठीक कैसे होंगी. Saidas was playing with her dolls nearby and she heard her mother's lament but kept calm. ठीक है, उसने खेलते खेलते अपनी मम्मी की ये सब आवाज़ सुनी लेकिन वो चुप रही. Later in the afternoon when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. मतलब जब दोपहर में थोड़ी सी धूप निकली तो she ran to her mother to say this that the some sunshine is still there. No, said everybody present. सबने मना कर दिया. It's too late and chilly. उन्होंने कहा बहुत ठंडा है, अब बहुत देर हो चुकी है. Your mother can't sit out there. Disheartened, Saidas returned to her doll. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. ठीक है, अब दोपहर की इतनी धूप बची रह गई थी जहाँ पे वो ऊपर खाली उनके मैंगो ट्री तक पहुँचे, मतलब नीचे की तरफ धूप नहीं थी. तो she was disheartened. Now children have at their command a restricted language, foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even the Almighty. अब एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो हम लोग कभी कभी अपने गॉड से करते हैं, अपने पेड़ों से बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं फ्लावर से बात करते हैं, तो दे आर डिफरेंट थिंग्स. एनिमल से बात करते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. उसी लैंग्वेज में सईदा ने क्या किया, जो सूरज के ढलती हुई की जो किरणें होती हैं उनसे उसने बातचीत करी. डियरेस्ट सिस्टर, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see my mother is ill and needs your help. उसने क्या रिक्वेस्ट करी सन से कि प्लीज़ कल अच्छे से आइएगा, खूब धूप लेके आइएगा ताकि मेरी मदर को धूप ला सके, उनको ज़रूरत है. श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वील बी हियर एट द फिक्स्ड आवर. ठीक है, अब एक इमेजिनेशन है राइटर का कि सूरज ने जवाब दिया नहीं तुम परेशान हो, तो दूसरे दिन हम निकलेंगे और अपने टाइम पे निकलेंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्रिंगली सनराइज एम्बल्स्ड देमसेल्व्स फॉर द जर्नी डाउन टू अर्थ, द सन सेट. ठीक है, अब जब जर्नी डाउन टू अर्थ मीन्स जब सनरेज नीचे अर्थ पे पड़ती हैं तो उस टाइम जब सन आने लगा, इट्स आर डे ऑफ अगेन. मतलब सन ने क्या कहा कि अब हमारा निकलने का समय, वी आर स्टेइंग अप हियर. उसने एक इमेजिनेशन है कि उसने कहा कि अब मैं आ गया हूँ, मैं दिन भर रहूँगा.
द रोड ऑफ अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मुकी क्लाउड्स। मतलब रेस और अर्थ के बीच में थोड़े क्लाउड्स आ गए, ठीक है, जो उनका जो डायरेक्ट सन रेस को ब्लॉक कर रही थी नीचे आने से। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर द लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। वन ऑफ देम दो who had made a pact with the little Saida said, "Sir, I can't stay back." अब इधर एक कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाउड एंड द सन है, एक इमेजिनेशन है कि वो बात कर रहे हैं कि नहीं, एक रे ने कहा कि नो, आई वॉन्ट टू गो डाउन बिकॉज आई हैव प्रॉमिस सईदा टू बी देयर नेक्स्ट डे. So he said, I am not going to stay back. I have given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. I'll press through the clouds to reach Saida's courtyard. उसने क्या कहा कि मैं clouds को चीरते हुए I will go down to Saida's courtyard. How else will her mother be cured? Hearing this, all the race nearly staged at a revolt against their father the sun. ठीक है, अब क्या है, क्योंकि रेस पूरी जा नहीं रही थी तो सारी रेस ने एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया सन से कि नहीं, अब हम भी चाहेंगे, हमें भी अपने वर्ड को पूरा करना है. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स. अब यहाँ पे इमेजिनेशन है पोएट की, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो रहा है बादलों के बीच में, रेस का, सन से बातें हो रही हैं कि दुनिया नीचे अर्थ हमको क्या कहेगी कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग अपने वर्ड को रखते नहीं हैं. द सन रिलेंटेड, प्लीज योरसेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी. मतलब माइंड योर क्लोथ्स मीन्स अच्छे से पहन लो ताकि, क्योंकि क्लाउड्स है. नेवर माइंड आर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट. मतलब उनका कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जाने दीजिए. And the rays rushed towards the earth. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. The little rays focused their heat, and they had enough of it on a battalion of clouds which had to flee from its post. मतलब वो डायरेक्ट सईदा के, मतलब जैसे तो सूरज की किरणें सब तरफ पड़ती, बट जैसे एक यहाँ पे इमेजिनेशन है कि वो सीधे सईदास की कोर्टयार्ड पे गई जहाँ पे उनको प्रॉपर हीट मिल सके. द रेस गॉट थ्रू, शूटिंग पास द bewildered clouds. They were already late. Means वो bewildered means naughty, बुरे clouds को चीरते हुए वो वहाँ पे पहुँच गई, तब जबकि वो लेट हो चुका था उनके लिए. Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. अब सईदा ने जब सनरेज को देखा तो she was very happy to see the rays of the sun. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here, come out." The old lady's eyes filled up with tears of gratitude. ठीक है, सईदा की मदर की आंखें भर आई खुशी के मारे, ठीक है, कि सन आ गया. Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour recycling against bold stars. ठीक है, मतलब कि वो उन्होंने तुरंत चरपाई निकलवाई और धूप में बैठ गई और वो अपने आप की सिकाई होने लगी जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया था. It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breath in fresh air. महीनों हो गए थे कि वो उन्होंने रेस को नहीं देखा था, रेस को महसूस, गर्म रेस को महसूस नहीं किया था, फ्रेश हवा को महसूस नहीं किया था, लिया नहीं था. तो शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी हैज़ कम टू टेक द फ्रेश एयर. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड. उन्होंने क्या इमेजिन किया सईदा की मदर ने कि वो एक नई दुनिया में आ गई. पहले क्या था, बंद कमरे में रह रही थी जहाँ धूप भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी अच्छे से, ठीक है. तो शी वॉज फीलिंग दैट शी इज़ इन अ न्यू वर्ल्ड. दो पेल, हर फेस ग्लोड एंड हर आई शोन ब्राइट. अब क्या, खुशी के मारे उनका चेहरा चमकने लगा, आंखें चमकने लगी. शी सॉ हर चाइल्ड टू बेथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर. द मॉर्निंग एयर ब्रॉड अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स. अब क्या था कि धूप निकलने के बाद जब वो बाहर आई खुली हवा में है तो उनको अच्छी अच्छी महक, फूलों की महक, पेड़ की महक दिखने लगी. द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून. सईदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. मीन्स अब जब वो नए इन्वायरमेंट में आ गई, खुले इन्वायरमेंट में आ गई, चिड़ियों की आवाज़ सुनने लगी, सब कुछ है, तो उनको बहुत अच्छा लगा. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. दो शी इज़ रिकवर्ड, वो बिल्कुल अच्छी हो गई, इवन देन शी इज़ लिसनिंग टू हर
doctor's advice, and she continued staying for an hour in the sun, an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. She used to sit for an hour in the sun in the fresh air, and she enjoys that time while she is out of the room. I hope you have understood the chapter. Thank you.